Hello everyone, welcome you all onto the SVP online study channel. Our today's topic is corrosion and we discussed about the types of chemical reactions till the previous class, right? So corrosion, this is a new term that you are listening, that name is what corrosion, but you have heard about the rusting of iron. It means the properties of iron are diminished with the passage of time. That is called rusting of iron, and I hope that you all are aware about the rusting of iron, right? We see number of metals around us, right? The different metals are used in the different works, and the use of metal is inevitable for us. It means uh, cannot tolerate the use of metals, right? But the efficiency or the strength of metals decrease after the time, or with the passage of time the efficiency of the metals decreases, right? We can consider the metals in our house, like the utensils that we use, the pure metal utensils, right? All kind of iron that is used in the construction of house, right? Our windows, each and everything, and the strength of that metal keeps on decreasing, right? Okay, it means whenever metal is present in the pure form, then that metal is present in the atmosphere, right? We know that each and everything is present in atmosphere, as likely metal is also present in atmosphere, right? Atmosphere contains number of things. In our atmosphere the different gases are there: oxygen, carbon dioxide, nitrogen, right? Along with these different gases, water vapors are also there, right? Water vapors or moisture is there in our atmosphere, right? So all those things which are present in this atmosphere, those things are exposed in the different atmospheric conditions, right? So according to the reactivity of those things, or especially if I talk about the metal, then according to the reactivity of metals, those metals react along with the components of atmosphere, right? And those components may be the O2. So some of the metals are there which can be which can contact along with the oxygen. Some can be contacted along with the H2O, and this H2O is what? Vapor or the moisture, right? In the vapor form they can they can react with the H2O, and they form a number of compounds. Is it clear? They form number of compounds. So the formation of different compounds due to the reaction of metals along with the atmospheric conditions, that term is called corrosion. That term is called corroजन. आप लोगों ने रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में सुना है, और रस्टिंग ऑफ आयरन में ऐसा होता है कि लोहे के जंग लग जाती है। वो लोहे के जंग ऑटोमेटिकली तो नहीं लगती है। वेन एवर वी बाय the pure iron article, at that time it is brighter one, right? But after some time means after 1 year, after 2 year, after 5 year, or 20 year, or 35 year, or the 50 years, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, राइट? एंड विद द पासेज ऑफ टाइम ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन की इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और होता क्या है, धीरे धीरे वो पूरा का पूरा आयरन खराब हो जाता है, राइट? और उसको इजी ब्रेकेबल हो गया। इज इट क्लियर? ये रस्टिंग ऑफ आयरन ने देखा था क्या, कि आयरन के ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है। आपने भी देखा होगा कि रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग, अगर कोई जंग लगा हुआ लोहा है उसके बाहर अगर हम टच करेंगे तो हमारे हैंड पे या जो भी क्लॉथ्स है उसके ऊपर रेडिश ब्राउन लेयर आएगी, राइट? दैट इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। इज इट क्लियर? इसका मतलब इतना सा है कि जब वो आयरन खरीदा गया होगा तब तक तो वो प्योर था, लेकिन धीरे धीरे एटमॉस्फेयर की कंडीशंस के साथ रिएक्ट करते 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 एक रेडिश ब्राउन लेयर उसके ऊपर डिपॉजिट होती गई। तो ये जो रेडिश ब्राउन लेयर का डिपोजिशन हो गया, जिसको हम स्पेसिफिकली रस्टिंग ऑफ आयरन कह रहे थे, ये स्पेसिफिकली रस्टिंग ऑफ आयरन ना हो कि क्या है, जनरली हम इसको क्या बोलते हैं, जनरली रस्टिंग ऑफ आयरन तो है ही, जनरली हम इसको बोलते हैं क्या, कोरोजन। इट इज क्लियर? इट मीन्स रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्ट is specifically dedicated to the iron only, while the corrosion is given for the all type of metals. It means corrosion is a general term while the rust is specifically related to the iron. अब समझ में आया क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? जो हम रस्टिंग कहते हैं वो रस्टिंग सिर्फ आयरन की होती है, जबकि कोरोजन क्या है, कोरोजन एक जनरल टर्म है, किसी भी मेटल के साथ में हो सकता है, राइट? आप लोगों ने देखा होगा कि जो कि ऑर्नामेंट्स है, दोज ऑर्नामेंट्स विच आर मेड अप बाय सिल्वर स्पेशली, राइट? सिल्वर स्पेशली, स्पेशली जो सिल्वर से बने हुए ऑर्नामेंट्स है वो
ऑर्नामेंट्स टाइम के पासेज के साथ में क्या पड़ जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, राइट। टाइम विद द पासेज ऑफ टाइम इनके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है, किसके ऊपर, सिल्वर ऑर्नामेंट्स पे, जो घर में भी होंगे या मम्मा के या और किसी रिलेटिव्स के होंगे, तो ब्लैक कोटिंग इज देयर ऑन टू द silver ornaments especially, right, because in the reactivity series Ag is having more reactivity as comparison to the Au is what here, Au is gold here, so Au की रिएक्टिविटी से ज़्यादा किसकी होती है, Ag से, तो एटमॉस्फेयर की कंडीशन से Ag पहले रिएक्ट करेगी, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि Ag ज़्यादा रिएक्ट करेगी, ठीक है। तो ये जो चांदी जब हम खरीद रहे हैं या गोल्ड सिल्वर हम जब खरीद रहे हैं तब वो प्योर होती है, बट आफ्टर द 10 years और द 20 years दे बिकम डार्क, दे बिकम ब्लैक, राइट, और अ ब्लैक कोटिंग इज देयर, ठीक है। फिर बहुत बार उसको वापस से गोल्ड स्मिथ के पास लेके जाना पड़ता है कि इसको सही कर दो कि इस लोहे के ऊपर, इसके ऊपर सिल्वर के ऊपर क्या आ गई है, ब्लैक कोटिंग आ गई। सो दिस डिपोजिशन ऑफ ब्लैक कोटिंग इज व्हाट, दिस इज व्हाट कोरोजन, क्या है ये, कोरोजन। हम डिस्कस करेंगे क्या क्या होता है। या आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घर में जो कॉपर के यूटेंसिल्स है, ऑल दोज यूटेंसिल्स विच आर फॉर्म्ड बाय कॉपर, उस कॉपर के जो भी मटेरियल आर्टिकल्स या कॉपर के जो यूटेंसिल्स है, उन कॉपर के यूटेंसिल्स के ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग आती है। कौन सी कोटिंग हो जाती है, ग्रीन कलर। आफ्टर द पासेज ऑफ टाइम, और हम अगर उसको कंप्लीटली ध्यान नहीं रख रहे हैं तो एक ग्रीन कलर की कोटिंग डिपॉजिट होती है। और ग्रीन कलर की कोटिंग अगर डिपॉजिट होती है तो वो जो डिपोजिशन ऑफ ग्रीन कलर कोटिंग, राइट, दैट इज कॉल्ड कोरोजन। इट मीन्स किसी भी मेटल की सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के साथ रिएक्ट करके जो लेयर का डिपोजिशन होता है, दैट जनरल टर्म इज कॉल्ड कोरोजन, दैट जनरल टर्म इज called corrosion. If this corrosion takes place in iron, then specifically what we can say, the rusting of iron. अगर ये corrosion iron का होता है तो उसको हम rusting of iron भी कह सकते हैं। Is it clear? Right? It means हमने देखा कि आयरन के ऊपर तो रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग हो रही थी, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग हो रही है, राइट। सिमिलरली ब्लैक कलर कोटिंग इज देयर ऑन टू द सिल्वर आर्टिकल्स, right. It means different types of compounds can be formed. It means different types of compounds are formed as a layer onto the surface of metal, मतलब मेटल की सरफेस के ऊपर अलग अलग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा, तभी तो अलग अलग कलर्स आ सकते हैं। इस मीन्स एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के साथ रिएक्ट करने पर अलग अलग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है मेटल्स की लेयर के ऊपर। अब मेटल्स बहुत सारी हो सकती है तो अलग अलग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो सकता है। सो हाउ कैन वी डिफाइन द कोरोजन, वी कैन डिफाइन द कोरोजन जस्ट the slowly eating up or the slowly eating up, right, because corrosion is observed in number of years, so this is very slow, right. So how can we define the corrosion, the slowly eaten up of metals by converting their surface into number of compounds like carbonates, sulfates, oxides, right, along with the reaction of atmospheric conditions. That atmospheric condition may include oxygen, carbon dioxide, moist air और वाटर वेपर एक्सेट्रा, राइट। तो ये जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। द स्लोली इटन अप ऑफ मेटल, स्लोली इटन ऑफ मेटल्स बाय कन्वर्टिंग देयर सरफेस इनटू सल्फेट्स, ऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड्स, सल्फेट्स, ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स एक्सेट्रा, राइट, along with the atmospheric conditions, that process is called corrosion. And the definition is also written here, you can see from the notes, the slowly eaten up of metals by converting them into the metal oxides, carbonates, sulfides, etc., which on the action of oxygen, moist air, etc. etc. means all the atmospheric condition is called corrosion. Rusting of iron is a part of corrosion. I have told you earlier that रस्टिंग ऑफ पार्ट आयरन, तो आयरन की कोरोजन को हम रस्ट बोलते हैं। स्पेशली आयरन का जो कोरोजन है उसको हम बोलते हैं क्या, रस्ट। रस्ट का मतलब जो आयरन के ऊपर कोरोजन होता है उसको रस्ट बोलते हैं। सो अगर हम उसको रस्ट बोल रहे हैं या कोरोजन बोल रहे हैं, दोनों क्या है, सेम चीज है, राइट। सो स्लोली ईटन अप ऑफ metal surface by converting it into the sulfates, sulfides, carbonates, metal oxides, etc. by the action of atmospheric conditions onto the metal, right, that process is called corrosion, right. And whenever this corrosion takes place with the iron, then it is called rusting of iron. Is it clear, right? For example, see here, whenever iron reacted along with the oxygen plus water, right, यहाँ पे इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या, all those iron articles or the iron metal is there, that iron metal is
this that iron metal is present in the atmosphere, right? And this iron is in contact along with the oxygen along with the water vapors, right? Water vapors, whenever this iron comes in contact along with the oxygen and water vapors, contact में आने की जरूरत ही नहीं है, हमेशा इसी के contact में रहता है water vapors और oxygen के. So whenever these combine together at that time hydrated ferric oxide is formed, and the formula of that hydrated ferric oxide is what? Fe2O3 dot XH2O, right? I will explain what is X here, right? So Fe2O3, this is called hydrated ferric oxide. Hydrated means mixed with water. hydrate का मतलब क्या होता है? वाटर. हाइड्रेट हम किसको बोलते हैं? वाटर. मतलब ऐसा ऑक्साइड जिसमें वाटर मिक्स है या वाटर की प्रेजेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड. हाइड्रेटेड मीन्स with the presence of water, right? So this is what hydrated ferric oxide. Let me see here again, that iron article is there, it comes along with the contact with oxygen plus XH2O. XH2O means it is not fixed that how many molecules of water are is used for that particular iron article. मतलब ये ट्वाइस ऑफ एफ जब 3/2O2 के साथ तो रिएक्ट करेगा, लेकिन ये नहीं पता है कि उस आयरन आर्टिकल में स्पेसिफिकली कितने स्पेशल वाटर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे. इट मीन्स एनी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कैन बी यूज्ड. एनी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कैन बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द आयरन, राइट? और द क्वालिटी ऑफ आयरन. तो हमको एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि कितने आयरन मॉलिक्यूल्स कितने वाटर मॉलिक्यूल्स यूज में आएंगे. तो मैंने ऐसे मान लिया कि लेट एक्स मॉलिक्यूल्स यूज में आएंगे. पक्का एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ ये रिएक्ट करेगा. और अगर ये एक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? XH2O. इसमें जितने के साथ रिएक्ट किया था उतने ही इस वाटर इसमें हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है. सो एक्स इज व्हाट हियर? एक्स इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. वी डोंट नो एक्चुअली हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स विल यूज in the corrosion process. That's why I have written here XH2, or what we write here? XH2O. So this XH2O water component is always present, right? मतलब जितने भी आर्टिकल्स, उन आर्टिकल्स के अंदर वाटर की प्रेजेंस तो होती है, राइट? अगर आयरन भी एटमॉस्फेयर में तो वो डायरेक्टली कांटेक्ट में है किसमें? वाटर वेपर्स की. तो XH2O, X means we don't know actually how many number of moles of H2O are used. So what we can write? XH2O. And this hydrated ferric oxide is of which color? This is of which color? Reddish brown. Reddish brown color. This is of which color? Reddish brown color. Is it clear? So Fe2O3.XH2O, this is what? This is the corrosion of iron. And what is its chemical name? Its chemical name is what? Hydrated ferric oxide. What is its name? Hydrated ferric oxide, containing which type of color? रेडिश ब्राउन कलर. इज इट क्लियर? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है. क्या 1 मार्क्स में आता है? व्हाट इज रस्ट केमिकली? नंबर ऑफ टाइम्स इट वाज आस्क्ड, राइट्स 1-2 टाइम्स इट वाज आस्क्ड इन द CBSE बोर्ड्स एग्जाम ऑल्सो. व्हाट इज रस्ट केमिकली? अब रस्ट क्या होती है? रस्ट तो वो होती है कोरोजन ऑफ आयरन इज रस्ट, राइट? और केमिकली क्या है? वो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. व्हाट इज द फॉर्मूला? Fe2O3.XH2O, राइट? सो व्हाट इज रस्ट केमिकली? ये पूछेगा आपसे. What is rust chemically, right? So chemically rust क्या है? Fe2O3.XH2O. Fe2O3.XH2O, that is rust chemically. और इसका कलर कौन से कलर की होती है? रेडिश ब्राउन कलर की होती है, राइट? Similarly, if you consider the copper utensils, then what we can have? Copper when react with the CO2, H2 and O2. ये सारी की सारी एटमोसफेयर में प्रेजेंट है. इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या? These all things are present in the atmosphere, right? These are present in the atmosphere, and on the combination of copper plus carbon dioxide plus H2O plus O2, CuCO3, copper carbonate and copper hydroxide. This is what? CuOH whole twice, right? So correct it on CuCO3.CuOH whole twice. Is it clear? This is what? copper carbonate plus copper carbonate dot copper hydroxide. ये डबल साल्टेट का मिक्स है, but you can put here CuOH whole twice. And this is what? green coating. What is its color? Green color. Green coating. So the corrosion of copper gives us green coating. Pakka, right? Similarly, if we talk about the silver, then when silver reacted with the oxygen at that time, twice of AgTO is formed. This is what? This is silver oxide or argentum oxide. This is what? Silver oxide. And what is its color? Its color is black. So black coating over
silver surfaces is there. Black color of silver surfaces are there. These three metals are very important in terms of 10th class. That's why I have written only the three metals here. One is iron, that is most famous one. After that copper, ये भी हमारी जनरल लाइफ में एसोसिएटेड है, और एक सिल्वर, सिल्वर भी हमारे डेली लाइफ के साथ में एसोसिएटेड है. तो हमने तीन ही मेटल्स लिया जिनको हम देखते भी हैं हमारी जनरल लाइफ में, राइट. इट मीन्स अब तक के डिस्कशन से ये समझ में आया कि ईच एंड एवरी मेटल दैट इज प्रेजेंट इन this universe or on this earth, or each and every metal that is present in this atmosphere, that metal every time reacts along with the atmospheric conditions, right? And those atmospheric conditions form corroded layer onto the metal surface. और वो जो कोरोजन की लेयर है, वो कोरोजन की लेयर क्या करती है, उस मेटल को वीक करती है, और कुछ टाइम के बाद में, कुछ टाइम का मतलब कुछ सालों के बाद में वो मेटल क्या हो जाती है, खराब हो जाती है. हमको उसको रिप्लेस करना होता है, ठीक है. और मेटल एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे हर वर्क को अफेक्ट करती है, राइट. सो वर्ल्ड वाइड लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स आर यूज्ड, वर्ल्ड वाइड लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स आर यूज्ड. और एक एस्टिमेटेड रिसर्च है, और एस्टिमेटेड रिसर्च ऐसे कहती है कि कोरोजन की वजह से दुनिया में हजारों करोड़ रुपए की मेटल एवरी ईयर क्या करती है, खराब होती है. हर साल कोरोजन की वजह से मेटल क्या होती है, खराब होती है. और मेटल का कोरोजन तो हमेशा होगा ही होगा. इज इट क्लियर, राइट. सो आयरन के ऊपर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की लेयर होती है, कॉपर के ऊपर कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की लेयर बनती है, सिल्वर के ऊपर Ag2 और सिल्वर ऑक्साइड की लेयर बनती है, राइट. दे आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, राइट. इसका मतलब कोरोजन हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, एंड वी शुड ट्राई टू प्रिवेंट द कोरोजन, राइट. सो व्हाट कैन वी डू टू प्रिवेंट द कोरोजन. इट मीन्स वन थिंग इज देयर. हमारे समझ में यहाँ तक आया कि अब तक जो मेटल की सरफेस है ना, ये मेटल की सरफेस अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कॉन्टैक्ट में आती है ना, ओनली देन द कोरोजन इज देयर, राइट. एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के कॉन्टैक्ट में आती है तो कोरोजन होगा. तो हम क्या करें, हम इस एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कॉन्टैक्ट में नहीं आने दे तो कोरोजन नहीं होगा. इट विल प्रिवेंट द कोरोजन, राइट. इट मीन्स अगर हम एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कॉन्टैक्ट में ही नहीं आने दे, ये मैटर का, मान लो ये कोई मेटल आर्टिकल है, इस मेटल आर्टिकल को मैंने क्या किया, बाहर की साइड से कुछ कर दिया ताकि वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस और ये जो गैसेज और वाटर वेपर्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ही नहीं आए, पक्का. then the corrosion can be prevented. In this way corrosion can be prevented, right. So how can we do this? कोरोजन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? जैसे हम जनरली करते हैं, जितने भी आयरन आर्टिकल्स होते हैं डोर्स के ऊपर या विंडोज में या और कोई से भी आयरन आर्टिकल्स है, व्हाट वी जनरली डू, वी डू पेंटिंग, राइट. इट मीन्स इफ यू अप्लाई द पेंट और ऑयलिंग, पेंटिंग करते हैं या ऑयलिंग करते हैं, तो हम कैसे, या ग्रीसिंग करते हैं, हम क्या करते हैं, अगर किसी मेटल सरफेस के ऊपर ग्रीसिंग कर दें, पेंटिंग कर दें या ऑयलिंग कर दें, एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, over the metal surface a layer of paint or grease or oil is there, so the atmospheric conditions cannot come in the direct contact along with the metal article, right. मेटल के आर्टिकल्स के ऊपर अगर हम कोटिंग कर दें या पेंट कर दें तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये मेटल के कांटेक्ट में आएगी नहीं, और मेटल के कांटेक्ट में आएगी नहीं तो कोरोजन होगा नहीं, और कोरोजन होगा नहीं तो मेटल ज़्यादा लंबे टाइम तक रहेगी. और हम हमारी जनरल प्रैक्टिस में ऐसा ही करते हैं, घर पे जितने भी आयरन आर्टिकल्स होते हैं उसको पेंट करके रखते हैं ताकि वो कोरोजन ना हो, ज़्यादा लंबे टाइम तक चले, राइट. दैट पेंटिंग डज नॉट प्रिवेंट द कोरोजन 100%, बट मोस्ट टाइप ऑफ कोरोजन्स और मोस्ट कोरोजन वो क्या कर देता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है, ओके. और क्या कर सकते हैं, इट मीन्स ऑल दोज टाइप ऑफ मेटल्स कैन बी पेंटेड और ग्रीस्ड और ऑयल्ड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कोरोजन. और क्या कर सकते हैं, देयर इज another method which is very important, and that is what the sacrificial decomposition. Sacrificial decomposition, see here what is sacrificial decomposition, right. sacrificial का मतलब तुमको पता है क्या, कुर्बान होना या बलिदान होना, सेक्रीफाई करना है, सेक्रीफाई एनीवन, उसको क्या बोलते हैं, सेक्रीफिशियल डिकम्पोजिशन, मतलब किसी कोई कुर्बान हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्रीफिशियल डिकम्पोजिशन. इट्स अनदर नेम इज गैल्वेनाइजेशन. नंबर ऑफ टाइम्स अ क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट ऑन द गैल्वेनाइजेशन. क्या है ये, गैल्वेनाइजेशन, पक्का. इट्स अनदर नेम इज व्हाट, गैल्वेनाइजेशन, राइट. सो इफ आस्क्ड अबाउट द गैल्वेनाइजेशन देन द सेक्रीफिशियल डिकम्पोजिशन इज देयर. होता क्या है कि
एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं सैक्रिफिशियल डिकम्पोजिशन। और दिस सैक्रिफिशियल डिकम्पोजिशन टेक्निक आप ऐसे इमेजिन कीजिए क्या कि नंबर ऑफ शिप्स होते हैं जो कि कहाँ पे रहते हैं। ये जो शिप्स हैं जैसे टाइटैनिक था, या बहुत बड़े बड़े शिप्स होते हैं जिनमें क्रिकेट स्टेडियम भी होते हैं, हेलीकॉप्टर हेलीपैड्स भी होते हैं, उनमें बड़ी बड़ी होटल्स भी होती है, रोड्स भी होती है, कार्स भी चलती है, बहुत बड़े बड़े शिप्स होते हैं, राइट। एंड दोज शिप्स आर फॉर्म्ड इन द नंबर ऑफ ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल माना कि एक बहुत बड़ा जहाज बनवा रही है इंडियन गवर्नमेंट, और वो इंडियन गवर्नमेंट बहुत बड़ा जहाज बना रही है, वो जहाज 10 साल में बन के तैयार हुआ, बिकॉज उसको बनाना कहाँ पे है, वाटर की सरफेस के ऊपर ही बनाना पड़ेगा, और वाटर की सरफेस पे ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो हाँ, और वो किससे मिलके बने होगा, मेटल से मिलके बना है। वो किससे मिलके बनेगा, मेटल से मिलके बना है, और मेटल में भी मोस्टली कौन सा, आयरन से मिलके बना होगा, राइट। माना कि वो जहाज 10 साल में बनके बना है, वो सिर्फ 10 साल में बन के बना था, जैसे एक टाइटैनिक था पहले 10 साल में मिलके बना है। फिर उसको चला रहे हैं तो वो एटमॉस्फेयर के तो डायरेक्ट कांटेक्ट में है, और ह्यूमिडिटी भी फुल है क्योंकि वो वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो वहाँ कोरोजन हो जाएगा। पता चला धीरे धीरे तो कोरोजन ही हो गया, 10 साल में जहाज बन के पता बना, और 15 साल में कोरोजन हो गया, 5 साल में खराब भी हो गया। अगर ऐसा हो जाए, बिकॉज अ शिप कोस्ट अराउंड थाउजेंड्स ऑफ करोड्स, राइट। एक शिप कितने में बनता है, हजारों करोड़ों रुपए में बनता है, राइट। तो वहाँ पे तो कोरोजन नहीं होना चाहिए, वो हमेशा ऐसे एज इट इज रहना चाहिए, राइट। तो हम क्या करते हैं, सेक्रीफिशियल डिकम्पोजिशन करते हैं। और अगर हम इसको ऐसे समझने की कोशिश करें तो क्या है, लेट अस सपोज ये एक हमारे पास एक शिप है, राइट। इस शिप, और ये शिप किससे मिलके बना होता है, ये शिप आयरन से मिलके बना होता है, राइट। एंड इन द रिएक्टिविटी सीरीज वी सी दैट देयर आर नंबर ऑफ मेटल्स, वी सी देयर आर नंबर ऑफ मेटल्स विच आर हैविंग मोर रिएक्टिविटी देन द आयरन। उन्हीं में से एक है क्या, जिंक। जिंक इज अ मेटल विच इज हैविंग मोर रिएक्टिविटी देन आयरन, एंड जिंक costs nothing. Zinc is economical also for our cells, right? तो अगर हम इस आयरन आर्टिकल के साथ में कोई जिंक ऐड कर दे, लेट अस सपोज हमने यहाँ पे क्या कर दिए, जिंक ऐड कर दिए, राइट। तो आयरन आर्टिकल ये कंटिन्यूसली वाटर के कांटेक्ट में है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, बट नाउ व्हाट वी आर यूजिंग, वी हैव आल्सो अटैच्ड सम जिंक along with the iron article, iron, राइट। हमने जो शिप बना है आयरन से, आयरन के साथ में जिंक अटैच कर दिया। अब हमें पता है क्या, जिंक की जो रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर आता है, आयरन नीचे आता है, तो जिंक, और हमें पता है जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है वो पहले रिएक्ट करेगा, जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है वो पहले रिएक्ट करेगा, इज इट क्लियर। और आफ्टर दैट कम रिएक्टिविटी वाले का नंबर आएगा। तो ये जो जिंक जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन से, वाटर वेपर से, मॉइस्चर से, ऑक्सीजन से पहले रिएक्ट करेगा, और पहले रिएक्ट करेगा तो सिर्फ ये ही रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा तो इसका कोरोजन होगा। इट मीन्स फर्स्ट इफ द जिंक इज रिएक्टेड देन द कोरोजन ऑफ जिंक इज देयर, और कोरोजन ऑफ जिंक इज देयर, इट मीन्स आयरन का तो कोरोजन होगा ही नहीं। जब तक जिंक रहेगा तब तक जिंक का कोरोजन होगा, राइट। जब तक जिंक रहेगा तब तक क्या होगा, जिंक का कोरोजन होगा। और जब तक जिंक का कोरोजन होगा, बिंग ऑफ मोर मोर रिएक्टिविटी, राइट। जब तक जिंक प्रेजेंट रहेगा, जिंक का ही कोरोजन होगा और आयरन का कोरोजन नहीं होगा, राइट। तो आयरन तो प्रोटेक्टेड रहेगा। इट मीन्स क्या होता है, आयरन को बचाने के चक्कर में जिंक ने खुद को सेक्रीफाई कर दिया, और यही टेक्निक हम यूज में लेते हैं किसके अंदर, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द शिप्स फ्रॉम द कोरोजन, राइट। क्या करते हैं, उसको शिप के साथ में छोटी छोटी सी रोड्स जिंक की अटैच करके रखते हैं, राइट। वो जिंक की रोड अगर आयरन के साथ अटैच है तो फर्स्ट ऑफ ऑल द कोरोजन ऑफ जिंक टेक्स प्लेस, एंड द जिंक इज सो इकोनॉमिकल एज कंपेरिजन टू द कॉस्ट ऑफ शिप, राइट। तो हजारों करोड़ों के शिप को बचाने के लिए हम 1, 2, 5, 10 हज़ार की जिंक की रोड्स उसके साथ अटैच करते हैं। तो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की जो रिएक्शन होती है वो जिंक के साथ ही होती है, तो जिंक का कोरोजन होता है, आयरन बचा रहता है, ठीक है। फिर थोड़े टाइम के बाद में जिंक खराब होने लगता है, खराब होने लगता है, जैसे ही उसको खराब होता है दूसरी जिंक रोड से रिप्लेस कर लेते हैं, तो ये टाइम चलता रहता है और आयरन का कोरोजन नहीं होता। इट मीन्स यहाँ पे हुआ क्या, जिंक ने सेक्रीफाई कर दिया आयरन को बचाने के लिए, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, सैक्रिफिशियल डिकम्पोजिशन, sacrificial decomposition, and such process is also called as what, galvanization। मतलब कि सैक्रिफिशियल डिकम्पोजिशन और गैल्वेनाइजेशन में हम करते क्या हैं, एक हाइयर रिएक्टिव मेटल को लोअर रिएक्टिव मेटल को बचाने के लिए उसके साथ अटैच कर देते हैं। लोअर रिएक्टिव मेटल को बचाने के लिए उसके साथ एक हाइयर इकोनॉमिकल रिएक्टिव मेटल को अटैच कर देते हैं। तो जो कोरोजन होता है वो हाइयर रिएक्टिव मेटल के साथ ही होता है, और लोअर रिएक्टिव मेटल क्या हो जाती है, बच जाती है। इस वाले को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। और ड्यू टू द सैक्रिफाई ऑफ हायर रिएक्टिव मेटल, दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, सैक्रिफिशियल डिकम्पोजिशन। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, गैल्वेनाइजेशन कैन बी आस्क्ड, राइट। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द गैल्वेनाइजेशन ऑफ
सैक्रिफिशियल डिकम्पोजिशन, मतलब किसी लोअर रिएक्टिव मेटल को बचाने के लिए हायर रिएक्टिव मेटल को उसके साथ अटैच कर दे तो पहले वही क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, राइट। सिमिलरली देयर इज एन अनदर मेथड ऑल्सो, क्या कि हम क्या कर दें कि कोटिंग कर दे किसी दूसरी मेटल की। इज इट क्लियर? क्या कर दे, कोटिंग कर दे किसी दूसरी मेटल की। लेट अस सपोज वी आर हैविंग वन मेटल एंड वी हैव टू कोट एन अनदर मेटल ओवर इट। हम क्या करें, कोटिंग कर दे किसी दूसरी मेटल की, तो भी क्या होगा, वो कोरोजन से वो पहली वाली मेटल क्या हो सकती है, बच सकती है, राइट। फॉर एग्जांपल नाउ अडेज वी यूज और नॉट वी, द वुमन यूज आर्टिफिशियल ज्वेलरी, राइट। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा चलता है। इन आर्टिफिशियल ज्वेलरी इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज यूज्ड, राइट। वी विल डिस्कस इन द थर्ड चैप्टर अबाउट द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बट अभी क्या है, यही था। ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी मतलब अगर कोई ओरिजिनल गोल्ड ऑर्नामेंट लेके आता है तो इट कॉस्ट 15 लाख रुपीज़। माना कि हो सकता है एक बहुत ऑर्नामेंट एक है जो कि गोल्ड का 15 लाख रुपीज़ में आता है, ओरिजिनल गोल्ड का, और एज इट इज उसी अपीयरेंस का, उसी साइन का एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी वाला नेकलेस या फिर गोल्ड ऑर्नामेंट 500 रुपीज़ का भी आ जाता है, ठीक है। जिसको वैसे बोलते हैं क्या कि सोने से कम नहीं खो जाए तो गम नहीं, राइट। कंपनी का प्रचार, आपका फायदा, सोने से कम नहीं खो जाए तो गम नहीं। इट मीन्स एक्चुअल में वो जो बना ऑर्नामेंट है वो बना हुआ किसी दूसरी मेटल का है, स्पेशली आयरन का बना हुआ है, उसके ऊपर सिर्फ गोल्ड की कोटिंग है। इट मीन्स अगर आयरन के ऊपर गोल्ड की कोटिंग कर दे तो गोल्ड की रिएक्टिविटी तो कम है। हमने देखा रिएक्टिविटी सीरीज में गोल्ड की रिएक्टिविटी कम है तो कम रिएक्ट करेगा, और कम रिएक्ट करेगा तो धीरे धीरे रिएक्ट करेगा। तो अब जो भी रिएक्शन होगी तो ऊपर की कोटिंग गोल्ड की है तो जो कोरोजन होगा गोल्ड का होगा, आयरन का नहीं होगा। अगर हम आपको आयरन का कोरोजन बचाना है तो हम किसी दूसरी मेटल का क्या कर सकते हैं, कोटिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दूसरी मेटल की कोटिंग कर सकते हैं। सो द कोटिंग ऑफ वन मेटल ओवर अनदर मेटल, दैट इज ऑल्सो अ मेथड टू प्रिवेंट द corrosion. Is it clear? So these are some methods by which we can prevent the corrosion, right? But corrosion is not useful to us at all, right? And the different metals form different type of compounds which are deposited over the metal surface. This is very important, right? अब तक और अब तक की क्लासों में हम ये समझते आए हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज देयर, राइट। बट रस्टिंग ऑफ आयरन ही नहीं होता है, हर मेटल जो प्रेजेंट है वो सारी की सारी मेटल्स क्या करती है, वो सारी की सारी मेटल्स में कोरोजन होता है, जो कि प्योर फॉर्म में मेटल्स होती है। किसी के भी दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है क्या, ऑल दोज आर्टिकल्स विच आर फॉर्म्ड बाय द स्टेनलेस स्टील और द नंबर ऑफ डिफरेंट जो आजकल किचन यूटेंसिल्स है वो किचन यूटेंसिल्स अलग अलग से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो वो तो ख़राब होते नहीं, वो तो काफ़ी शाइनिंग और लस्ट्रस लुक होते हैं, राइट। वो इसलिए ख़राब नहीं होते हैं कि वो एक्चुअली क्या है, एलॉयज हैं, वो मेटल्स नहीं है, वो प्योर मेटल्स नहीं है, राइट। वो क्या है, एलॉयज है। अभी मैं सिर्फ इतना कहूँगा, एलॉयज आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स। दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को किसी पर्टिकुलर रेशियो में मिक्स कर देते हैं, या फिर दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का जो कॉम्बिनेशन है ना, या उनका होमोजीनियस मिक्सचर है, उसको बोलते हैं एलॉयज, राइट। हमारे पास थर्ड चैप्टर है, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल, इन विच वी विल डिस्कस in detail about the metal and alloys. Is it clear? Right. So till then you should go through the corrosion of metals, right. बस एक चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि कोरोजन हर किसी मेटल का होता है, ना कि आयरन का ही होता है। आयरन का तो होता ही है जिसको हम रस्टिंग कहते हैं, राइट। लेकिन हर किसी मेटल का होता है, उसको जनरली हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। सो कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, स्टे एट योर होम, बी सेफ, प्रोटेक्ट योर फैमिली एंड एंजॉय द मेलोडी ऑफ लाइफ। थैंक यू, वी विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर।